پشاور میں کانفرنس میں وہاں موجود تھے, سر نے یہاں تک آفر دی کہ انوویٹیو ٹاپک لے کر آئیں, انوویٹیو ریسرچ لے کر آئیں, میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لوں گا اس کے, لیکن آئیڈیا جو ہے وہ انوویٹیو ہونا چاہیے, یونیک ہونا چاہیے, اور میں اپنے جرنل میں آفر کر رہا ہوں کہ جس کو پبلش کروں گا وداؤٹ سنگل پینی. تو یہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. پلیز نوٹ, بی لائل ٹو دی انسٹیٹیوشن. کہتے ہیں جی ہمیں کہ ملتے پیسے کا, ڈونٹ ورک فار منی, اسٹیبلش یور کریڈیبلٹی, منی ول رن آفٹر یو. بہت شکریہ پروفیسر نذیر. آپ نے بات کری لو ہینگنگ فروٹ کی, کہ جو آپ کر سکتے ہیں پہلے وہ کر لیجئے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گرانٹس کمپٹیٹیو ہیں, وہ پہلی گرانٹ لکھی ہوئی کبھی بھی کمپٹیشن میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر اس سے پہلے جو لو ہینگنگ فروٹ پہ کام کیا ہوا ہو تو وہ پھر کام آتا ہے کہ جب کمپٹیشن ان دا گرانٹس. جب پاکستان آیا تو میں نے کہا کہ پاکستان میں دانت کس رفتار سے نکلتے ہیں اور کس طریقے سے نکلتے ہیں, کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. میں نے کام کیا الحمدللہ, میں 14 پبلیکیشن اس پر میں نے کام کیا, کراچی میں, لاٹھکانہ میں, کوئٹہ میں, پشاور میں اور لاہور میں ڈیٹا جمع کیا اس ملک شہر سے, اور پھر ہم نے پورے پاکستان کے ڈیٹا میتھڈ سے کیے جائیں, کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں بہت کیپیبل ہیں اور بہت ہی کیپیبل ہیں, اور وہ اگر ان میں اب جو ہے دوسرا امپیکٹ فیکٹر بھی بات ہے, ہر کوئی کوشش کرتا ہے امپیکٹ فیکٹر. اچھا ایچ ای سی نے یہ بنایا کہ پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو امپیکٹ فیکٹر میں چھپوانا پڑے گا. اچھا اتنے پیسے باہر جا رہے ہیں ہمارے ملک سے, اگر وہ پیسے لوکل استعمال ہو جائیں تو بہت ہوگا کہ, اور امپیکٹ. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ود ڈیو ریسپیکٹ بہت سارے مافیا گروپس ہیں, اور ایک انہیں میڈیکل مافیا گروپ بھی ہے. السلام علیکم سبسکرائبرز اینڈ ویورز. آج ہم موجود ہیں جناسن میڈیکل یونیورسٹی JSMU میں, جہاں AI ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سمپوزیم کا شاندار انعقاد کیا گیا. اس ایونٹ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریسرچ اور ہیلتھ ایجوکیشن کے فیوچر پر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, جس میں اسٹوڈنٹس, ریسرچرز اور پروفیشنز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آئیے اس انفارمیٹیو اور انسپائرنگ ایونٹ کی کچھ خاص جھلکیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. Examiner bias, or the kind of pressure and angulation of the probe that is provided to the gum tissue. Hence, it can result in pooling of the blood and it can cause distress to the patient. So the idea is that you can use saliva, use proteomics
identify certain biomarkers that can diagnose the disease very specifically. Not only will it diagnose the disease, but what can it do? It can identify the prognosis of the disease as well. Based on the study, we had 4 objectives. First, to quantify these salivary biomarkers, to precisely measure the values of matrix metalloprotease 8 and interleukin 1 beta across healthy patients, gingivitis patients, and periodontitis patients. To compare these disease states, to analyze and compare how these biomarker levels they progress throughout the severity of the periodontal disease. To associate it with probing depth, and to assess the age relationship between the study participants. So for the methodology, we used a cross-sectional study in Karachi, Pakistan. We recruited 60 medically healthy adults aged 18 to 70 years. We also diagnosed patients on the basis of clinical examination of gingivitis and periodontitis. The clinical examination was done by the CPIT and probe. Saliva sample was then collected. So since saliva is non-invasive, we wanted to identify if the saliva can be a good diagnostic tool to identify those diseases. The biomarker quantification was done using ELISA technique. I'm Ayman, currently working as the fellow in the gynae oncology in Dr. Nidak's ward. So my topic is on HPV vaccine. So I would like to request Mr. Essen to please kindly play 2-minute video just to let you know guys how much we work in the HPV campaign. Thank you so much, everybody. This was just a quick refresher to keep minds working. So let's start with the presentation, please. So my studies regarding the awareness, acceptance, and uptake of the human papilloma virus vaccine following parental counseling of young girls aged 9 to 14 years old. So the background, as we all know, that cervical cancer is a huge burden on the public health sector. And we all know that it is the causative agent is the high-risk human papilloma virus. Vaccine is available and it is the effective treatment. But awareness, acceptance and uptake is lacking in Pakistan. The rationale behind this study is the parental awareness, counseling and the socio-cultural factors play an important role in determining vaccine uptake. जो है क्लिनिशियंस की भी और दूसरे जो है उन लोगों की भी हम यहाँ पे तो बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं where we are unlocking the potential for the new generation that they have to develop their research capacity. So कौन से new resources हैं जो कि यूनिवर्सिटीज और उनको अस्पतालों को चाहिए ताकि उनके फैकल्टी मेंबर में जो है ना रिसर्च का शौक पैदा हो and they can start robust research as we have been listening to very good research this morning. So please, I would like to request you. थैंक यू प्रोफेसर आमिर। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और मुबारकबाद देता हूँ JSMU की पूरी फैकल्टी। रिसर्च की हम अगर देखना चाहते हैं कि जी एडवांसमेंट क्या है और रिसर्च कहाँ पर है पाकिस्तान में, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आज इस सिम्पोजियम का इनेकाद हो रहा है और ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि लास्ट 10-12 ईयर के अंदर बढ़ी हैं। अदरवाइज रिसर्च को उस तरीके से ना इम्पोर्टेंस मिलती थी और ना उस तरीके से रिकग्नाइजेशन मिलती थी। मैडम के सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि जाहिर सी बात है डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के हमारे पास रेजिडेंट्स आते हैं जिनको हम देखते हैं और ऑल ओवर मोर देन 89 स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें हमारी फेलोशिप कॉलेज ऑफ एशियन सर्जन्स पाकिस्तान करा रहा है और रिसर्च इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट कि जो उसके ऊपर काम करना है। जो सबसे बड़ा इस पर ड्रॉबैक देखा है दैट इज़ द लैक ऑफ मेंटरशिप एंड लैक ऑफ गाइडेंस। आज का रेजिडेंट जिस वजह से परेशान है वो ये है कि जी मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती
प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, और ये सब्जेक्ट जब हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्लिनिकल रोटेशन कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें जगह मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, बच्चे आ रहे हैं ना, ये बच्चों के लिए ही है, तो बच्चे आप सारे आगे आके बैठे, जितनी भी आगे जगह है आप आगे आ जाएं और आगे बैठ जाएं, बिकॉज दिस इज फॉर द न्यू जनरेशन. तो आई वुड लाइक अस ऑल टू क्लैप फॉर दिस न्यू जनरेशन who is standing alert since morning. Thank you for coming. Take your places. You should be in front of us. अच्छा, उसी बात को कंटिन्यू कर रहा था. बैकग्राउंड ना हो उस वक्त आपके एक्सपेक्ट करना अपने ट्रेनी से या रेजिडेंट से कि वो उसके ऊपर डिलीवर कर सके. तो मेरी सजेशन ये है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस सब्जेक्ट को राइट टाइम पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए. ऑल्दो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे इस सब्जेक्ट को जो एक इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और एक रिकग्नाइज करना चाहिए कि रिसर्च मैथोडोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक, एपिडेमियोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को राइट टाइम पे अगर हम स्टार्ट कर लें तो हमारे कम से कम जो ट्रेनीज हैं वो इस पोजीशन पे होंगे कि जब वो आते हैं और हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो रिसर्च कर सकें तो वो उसको डिलीवर कर सकेंगे. हमने कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री के सब्जेक्ट देखा है, और बी रियलिस्टिक होकर अगर हम बात करें तो हमें पता है कि उसमें क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है. तो इस वक्त अगर हम बात करते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई के टूल्स आ चुके हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट है, रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए सैंपल साइज कैलकुलेशन है, वी हैव मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स. लेकिन मेरा अपना एक हमेशा से ये रहता है कि जब तक आप अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे हम इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते. हमें इस चीज़ को रियलाइज करना होगा कि हमें टेक्नोलॉजी से असिस्टेंस लेनी है. आज का बच्चा मैं ये देख रहा हूँ कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो चुका है एआई टूल्स के ऊपर कि उसकी बेसिक्स जो है वो बिल्कुल वीक हैं, लेकिन एआई टूल जैसे उसको लीड कर रहा है उसी तरीके से चल रहा है. तो अगर हम राइट टाइम पे इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा दें और वहाँ से इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करें तो हम इस पोजीशन पे होंगे कि इंशाल्लाह ताला अच्छे रिसर्चर, ऑलरेडी रिसर्च हो रही है लेकिन हम अच्छे रिसर्चर जो है प्रोड्यूस कर सकेंगे. थैंक यू. इसी के साथ साथ मेरा ये सवाल है, या ये सवाल जो ग्रुप ने पोस्ट किए हैं मिस्टर शौकत जावेद से, कि आप तमाम मेडिकल जर्नलिज्म आपने पढ़ाई है लोकल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, और ये जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ये अपनी कैपेसिटी या स्किल्स जो है, जैसे कि अभी डॉक्टर नबील ने कहा कि उसकी ज़रूरत है, वो कैसे इन्हांस कर सकते हैं इन द करंट सिनेरियो, बिकॉज यू आल्सो गेट देयर पब्लिकेशंस एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ लेवल या किस तरह की रिसर्च पब्लिकेशंस आ रही हैं, उनमें वीकनेसेस क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और ज़रूरत किस बात की है. Thank you very much. I would also like to congratulate the university administration for having organized this session. When I started my professional life with the medical journal in 1966, I look back at the professors of those days and the faculty and the trainees, and there was difference. Today I see there is a lack of devotion and dedication. Loyalty is lacking in the faculty. They are not committed to their institutions. 7th batch I qualified. In 4th batch, I had 8 PhDs, professors from different universities. उन्होंने कहा जी, we wish we should have done this course much earlier. Having 55 years in this field, I still know many things. I keep on updating myself. So ये पहले कहते हैं कि आप सीखने के लिए बुरा ना मनाएं. You learn all your life. Or things are changing so fast, even it is difficult to keep pace with the editor. I mean, we should know what is the guidelines of the WHO. There was a time you write schizophrenics, diabetics. You can't use these words now. तो ये चीज़ें आपको अपडेट करना, तो जब तक आप खुद अपडेट नहीं होंगे दूसरों को आप गाइड नहीं कर सकते. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को जो आजकल फीमेल हैं, जब मेरे पास आती हैं कहीं यहीं भी मिलती हैं तो उनका रोना शुरू कर क्या जी गाइडेंस नहीं है, सुपरवाइजर के पास टाइम नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड. अब व्हाई यू हैव बिकम सुपरवाइजर देन इफ यू नॉट गोइंग टू टीच देम. सिलेक्शन ऑफ टॉपिक उसी में साल लगा देते हैं, लिमिटेड टाइम टू वर्क. तो अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए, पहली तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, बी लॉयल टू द इंस्टीट्यूशन. कहते नहीं हमें कि मिलते पैसे का, डोंट वर्क फॉर मनी. Establish your credibility, money will run after you.
ایک میرے جیسا عام آدمی, if I can start a journal at the highest impact factor, the Q2 category, why can't these medical college universities do that? They have all the resources. Look at the facility, look at the faculty there. لیکن یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ٹیم ورک, collaboration within the institution, with other institution. اپنا ٹائم مینجمنٹ کیسے آپ نے کرنا, آپ کا اپنا انٹرسٹ. I was sitting in a panel like this in Rahman Medical Institute 2 years back. تو پروفیسر ذل محمود ماڈریٹ سیشن, انہوں نے کہا جی ایک سوال آپ کے لیے ہے, آپ کے جرنل میں آرٹیکل چھپنا بہت مشکل ہے, تو کیا طریقہ جلدی چھپ جائے؟ میں کہا بالکل جلدی چھپ سکتا ہے, ودن 2 months میں چھاپ دوں. یہ سلیکٹ ٹاپک, میں نے کہا ہیلتھ کارڈ شروع ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, 10 سال ہو گئے. کین یو گیو می سم اسٹڈی آن دیٹ؟ انسٹیٹیوشنل پریکٹس شروع ہوئی, اس کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصان ہے؟ ہیو اینی ون اسٹڈی آن دیٹ؟ نہیں. آئیڈینٹیفائی یور پرابلم اینڈ فائنڈ اے سولوشن. آپ کی سلیکشن ہی غلط ہوتی, آپ ادھر ادھر کے آتے ہیں, می ٹو اسٹڈی کر لیا, اس کو دیکھ لیا, اس کو دیکھ لیا, پھر چھپ بھی جاتا ہے آپ کو. یو آر گوئنگ فار کوانٹٹی ناٹ کوالٹی. تو انوویشن ہونی چاہیے کچھ. Yes, faculties they have to guide the new potential. تو ان کی کیا مشکلات ہیں, کیا تکلیف ان کی ہے, جس perceiving the needs to undertake strong robust research, جس سے کہ اس ملک کو بھی فائدہ ہو. کیونکہ ہم بیرونی ریسرچ پہ ریلائی کرتے ہیں, ہمارے اپنے لوگوں کا ڈیٹا جب ہوگا موجود تو پروٹوکالز, کلینکل پروٹوکالز اور دوسرے پروٹوکالز اسی پہ بنیں گے. تو پروفیسر نذیر پلیز اگر اس پہ آپ لائٹ ڈالیں کہ what are the difficulties faced by the faculty in perceiving the needs to undertake strong research rather than, جیسے شوکت صاحب نے کہا کہ فارمل ریکوائرمنٹ کے ہم کوئی بھی پبلیکیشن کر دیں اور ہمارا پروموشن ہو جائے, یا ہمارے کوئی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے پی ایم ڈی سی کی یا ایچ ای سی کی, ہم وہ پوری کر دیں. نہیں, ہمیں بالکل اس دن افریدی صاحب نے کہا تھا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. تو یہ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, تو ہم پیچھے طرف چلے جائیں. 2004 کی بات ہے, 2003 کی بات ہے. پاکستان میں اس وقت جو پبلیکیشن ہوتی تھی 1000 پر ایئر ہوتی تھی پبلیکیشن. اس وقت ہے وہ 80,000, مور دین 80,000 پبلیکیشن ہو رہی ہے. our graph are really high. لیکن ادر سائڈ اس کے ڈارک سائڈ بھی ہے. انوویشن میں وہ ریسرچ جو انوویٹو ہو, جو کچھ کام آ سکے, جس کے کچھ ہم جس سے اپلیکیشن ہو سکے, کچھ انڈسٹریز میں گئے, ہم اس کی امید بالکل نہیں چاہیے. تو ہم وہ یہ ہے کہ ہم پبلیکیشن میں تو ہم نے ایکسپونینشیل گروتھ کیا ہے, لیکن اس کو ہم نے نہیں کہہ سکتے ہم اس کو اپلیکیشن. اب میڈم کا جو سوال ہے اس پوائنٹ میں دیکھیں کہ ہم اس کو 80,000 کو کس طرح سے اسی طرح سے حساب سے ہم اپلیکیشن کی طرف لے جائیں. ڈاکٹر انویل سے ہی بات کہی ہے کہ اس کے لیے چند چیزیں ہیں. پہلا یہ کہ آپ اے آئی بیسڈ وہ چیزیں. دوسری بات یہ کہ کمپیوٹر فیسلٹی ایسی ہو کہ جو کہ فاسٹ ٹریک ہو, تیزی سے کام ہو سکے اس کے. تیسری بات یہ ہے کہ جو سافٹ ویئرس ہیں وہ اویلیبل ہو, تاکہ سیمپل سائز کیلکولیشن ہو یا دوسری چیز ہو وہ لی جائے. اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن لے سکتے ہیں, ایس پی ایس ایس کی لائسنس لے سکتے ہیں, تو انسٹیٹیوشن کیوں نہیں لے سکتا؟ کیوں وہ پلیجرائزڈ اور یا اس طرح سے ایسے جو کہ سافٹ ویئر لے گئے اس کو کہیں کاپی کر کے کر دیا, کیوں نہیں کر سکتے؟ تاکہ جب یہ سافٹ ویئر لیں گے اپ گریڈ ہوں گے اور اچھے کام کر سکیں گے. اب آئیے تیسری طرف کہ ہم اس کو کس طرح سے مزید ہم آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں. لازمی طور سے ہر آدمی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ نہیں بن سکتے ہیں. تو شروعات میں آپ ایک نیا فیکلٹی ممبر آیا ہے, اس کو اپنے طرف گروتھ کرنا ہے. تو وہ شروع میں آپ کو وہ چیزیں لے جو کہ آسانی سے ہو سکے, جو جس میں کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی کسی طرح کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں. بیبلوگرافک کی اسٹڈی کر لیجیے, آپ کے نکالیے, دیکھیے کہ کس طرح سے ٹرینڈ ہے. اس میں کوئی آپ کو سافٹ ویئر ضرورت نہیں, کچھ نہیں. اسی طرح آپ ریویو کر سکتے ہیں, ریویو آرٹیکل لکھ سکتے ہیں.
इस तरह से आपको लर्निंग होगी कि आर्टिकल लिखा कैसे जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई फंड की जरूरत नहीं होती, किसी चीज की जरूरत नहीं। आपका टाइम चाहिए, आपकी ओर से आपको फंड की जरूरत होगी, जब आप आगे बढ़ेंगे फंड की जरूरत होगी। सिंथेसिस में अच्छे खासे फंड अवेलेबल है, मैं खुद उसका मेंबर रह चुका हूँ पिछले साल, तो फंड अवेलेबल है। आप अगर फंड के अप्लाई करेंगे फंड मिल जाएगा। NRUP ने दोबारा 4-5 साल के बाद दोबारा जा चुकी है, वो हर साल वो भेज रही है, पिछले साल ही भेजा, इस साल ही भेजा उन्होंने, NRUP ने दिया, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे फंड, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, ठीक है, इसमें कंपटीशन जरूर है, लेकिन ये नहीं हाई नहीं। दूसरा आपके इंस्टीट्यूशन में बहुत फंड अवेलेबल है, मेरे ख्याल मैडम प्रोफेसर मेमन बैठे हैं, तो बताएंगे कि फंड्स की देयर फंड्स अवेलेबल। इसके लिए बस ये कि आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब ये है कि इसको करें आप, और आप एक स्टार्ट में सीखें और वर्कशॉप कराएं, लोग आगे बढ़ सके। इसको बच्चों को सुपरवाइज कराइए, बच्चों को समझाइए पब्लिकेशन कैसे करते हैं, ये चीजें कर सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ के थोड़ा सा। और छठा जो है इन्वायरमेंट है, मेन थिंग रिसर्च इन्वायरमेंट। डॉ में था, अल्हम्दुलिल्लाह जब डॉ में पहुंचा तो शायद 15-20 पब्लिकेशन होती थी, जब मैं निकला तो 200 पब्लिकेशन होती थी। एक इन्वायरमेंट पैदा कीजिए। जेसीयू में आया, जेसीयू में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ हुई। आप एक इन्वायरमेंट, आप कॉन्फ्रेंसेस कराइए, रिसर्च जैसे ये हो रहा है, रिसर्च डे बनाइए, कॉन्फ्रेंसेस कराइए, वर्कशॉप्स कराइए, लोगों को जो फंडिंग के लिए वो आ रही हैं उनको पहुंचाइए, लोग अप्लाई कर सकें। तो ये सब मेरा ख्याल इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, ताकि हम कर सकते। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नज़ीर, आपने बात करी लो हैंगिंग फ्रूट की, कि जो आप कर सकते हैं पहले वो कर लीजिए, और उसके बाद क्या होता है कि ग्रांट्स कॉम्पिटिटिव हैं। वो पहली ग्रांट लिखी हुई कभी भी कंपटीशन में कामयाब नहीं हो सकती, अगर उससे पहले जो लो हैंगिंग फ्रूट पे काम किया हुआ हो तो वो फिर काम आता है कि जब कंपटीशन इन द ग्रांट्स। आज की जरूरत क्या है? आज की जरूरत हमारे पाकिस्तान में ये है कि उस तरह प्रोजेक्ट पकड़े जाएं जो कि डेटा बेस क्रिएट करे, जिसमें कि आपका नाम होगी, अगर इस सब्जेक्ट में देखें तो इस बंदे के पास जाओ, इस सब्जेक्ट में इस बंदे के पास जाओ, वो आप डेटा बेस करें। जैसे कि मैं आपके एग्जाम्पल, जब पाकिस्तान आया तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में दांत किस रफ्तार से निकलते हैं और किस सीखे से निकलते हैं, कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14 पब्लिकेशन इस पर मैंने काम किया, कराची में, लाड़काना में, कोयटा में, पेशावर में और लाहौर में डेटा जमा किया इस मुल्क शहर से, और फिर हमने पूरे पाकिस्तान में डेटा खोला। इसमें 2 लोगों ने PhD किया उस पर, और उन्होंने 15 पब्लिकेशन। इसी तरह मैंने दूसरा पकड़ा होगा आजकल, इफेक्ट ऑफ रमजान फास्टिंग। अब तक मैंने 9 पब्लिकेशन हो चुकी है इफेक्ट ऑफ रमजान फास्टिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच प्रोफेसर नज़ीर। इस सवाल के बाद मैं प्रोफेसर आफरीदी के पास जाऊंगी कि जो डॉक्टर नज़ीर ने तो ये कहा कि लो रिसोर्सेज में, लो हैंगिंग फ्रूट में आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये कि फिर भी जो मैकेनिज्म्स हैं, फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स, वो दरकार हैं फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, कि वो उसमें जो है ना व्हाट फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स कैन बी मोबिलाइज्ड, जो कि मौजूद हैं, या मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, या नए इनकाद की ज़रूरत है, टू प्रमोट रिसर्च एक्टिविटीज़ अमंग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी ऑफ ए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आमना। सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ, ये प्रोग्राम मैडम निगत ने किए, और आपका और खासतौर मिनिस्टर ने टाइम निकाला इसके लिए कि रिसर्च गैप को, बैरियर्स को हम आइडेंटिफाई करें। और मैं इसमें दूसरी अहम बात ये थी कि जिस तरह से उन्होंने हेल्दी फूड रखा हुआ है और एनवायरनमेंट को फ़रोग़ देने के लिए पौधे किए हैं, इसी तरह इन्होंने मुझे बताया डॉक्टर आमना ने कि इंस्ट्रक्शन है कि उर्दू में बात की जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम अपने ही ज़ुबान में चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। जहाँ तक ये फाइनेंशियल आस्पेक्ट की ताल्लुक है, तो जैसे नज़ीर साहब ने बताया, मैंने 91 में फर्स्ट टाइम जब रिसर्च किया असेसमेंट ऑफ इनसाइट, तो सरवर ज़ुबैरी मरहूमा जो कि जनरल ऑफ पाकिस्तान से मेडिकल एसोसिएशन के लीडर थी, उन्होंने कहा इतने मुश्किल से आप व्हाई नॉट यू आर गोइंग, व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ मिनार्की, हमारे पाकिस्तान में माहवारी बच्चियों की कब शुरू होती है, इस छोटे रिसर्च करें, या बॉडी मास इंडेक्स क्या है हमारा, क्योंकि एशियन के लिए जो है और पूरी दुनिया के लिए मुख्तलिफ है। तो इस तरीके से ये है कि जिस तरह ने बताया कि कुछ रिसर्च बगैर उसके हो सकते हैं, लेकिन वही बात है कि इसमें नीयत साफ हो। एक रिसर्च की गई रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट में कि लोग रिसर्च क्यों करते हैं,
80% ने कहा टू इम्प्रूव CV, और अभी कहेंगे कि टू गेट प्रमोशन। भाई ये तो आपको प्रमोशन और CV इम्प्रूव हो गई, लेकिन नीयत अगर आखिरत के हिसाब से रखें, जो एक शेर है ना कि रोज़ो नमाज ई पण चंगू काम पर वो को बेवफाहम जैसा पस जे पीरी के, यानी मतलब ये कि अगर अल्लाह की वहदानियत और अच्छाई आपको चाहिए तो वो आपको ये ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो एक तो नीयत ठीक हो, और दूसरी बात ये कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात है कि हर यूनिवर्सिटी, मिनिस्टर साहब सब बैठे हैं कि हर यूनिवर्सिटी अपनी जो है रिसर्च ग्रांट डिफाइन करे और उसको प्रिवेंशन एस्पेक्ट पे एक भी रखे, एक इंटरवेंशन पे, रिहेबिलिटेशन पे, सर्विस यूटिलाइजेशन पे। उससे ये होगा कि बहुत सारी बीमारियों को हम रोक सकेंगे और उससे जो है कम खर्चे में बहुत सारा हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं जब डीन था, साइमल्टेनियसली डीन था, कॉलेज फिजिशियन में भी, JPMC में भी और इस यूनिवर्सिटी में भी, तो मैंने कहा ये फार्मो को विजिलेंस में रखाता हूँ। लोगों ने दिलचस्पी ही नहीं ली, और हमने सिर्फ गायनी वार्ड हमारा जो है वो जो है ड्रैप ने इम्प्रूव किया है, जबकि मेरा अपना हॉस्पिटल फिर उसके बाद में कि हम अब साइकेट्री वार्ड को क्यों नहीं कर रहे थे कि उस वक्त हमारी बिल्डिंग बन रही थी। तो जब तक ड्रैप से ये प्रूव नहीं हो, क्लिनिकल ट्रायल पे पाकिस्तान के पास $2.5 बिलियन का कैपेसिटी है। इंडिया 7.5 बिलियन हर साल कमाता है, लेकिन चूंकि एक तो हमारे क्लिनिशियन और रिसर्चर के दर हमआहंगी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैं तो एक जर्नल चलाता हूँ, लोग क्या करते हैं कि रिसर्च करके बाद में इंस्टीट्यूशन के बाद जाते हैं। यूं समझे कि कपड़े पहले काट दिए, कपड़ा बाद में कहते हैं किस उम्र के लिए चाहिए। भाई तो इंस्टीट्यूशन को तो पहले ही बताना पड़ेगा कि किस उम्र के बच्चे के लिए आपने कपड़े काटने हैं, सिलाई करनी है। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट और इंस्टीट्यूशन और फिर इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी की, अच्छा फिर रुकावटें इतनी हैं। मेरे साथ एक लड़की ने PhD की कि व्हाट आर द बायोकेमिकल मार्कर ऑफ डिप्रेशन बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। उसके भाई जो मैनचेस्टर में था उसने 18 लाख रुपए भेजे और उसने वो रिसर्च कर ली, वो HEC में भेजे। तो वो इतने सारे रुकावटें हैं, इतनी सारी मुसीबतें हैं, उसमें ड्रैप से किसी से लेना। तो ये चीज़ें अगर हम आसानी से हो जाएं और ख़ास तौर पर डिजिटल मेथड से किए जाएं, क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं बहुत कैपेबल हैं और बहुत ही कैपेबल हैं, और वो अगर इनमें अब जो है दूसरा इम्पैक्ट फैक्टर भी बात है, हर कोई कोशिश करता है इम्पैक्ट फैक्टर। अच्छा HEC ने ये बनाया कि PhD के लिए आपको इम्पैक्ट फैक्टर में छपवाना पड़ेगा। अच्छा इतने पैसे बाहर जा रहे हैं हमारे मुल्क से, अगर वो पैसे लोकल इस्तेमाल हो जाएं तो बहुत होगा कि, और इम्पैक्ट अभी हमने एक रिसर्च की पूरे पाकिस्तान की सर्वे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, और लैंसेट वाले $6,000 मांग रहे हैं, यानी 17 लाख रुपए मांग रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, मैंने जब जर्नल अपना शुरू किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट की, उसकी कोई प्रोसेसिंग पैसे नहीं होंगे, ना जो है उसकी क्या चार्जेस हैं सब्सक्रिप्शन की। तो इस सिलसिले में अगर अब HEC ने एक और मुसीबत की, पहले 6-7 लाख रुपए देते थे बैठे हुए सर, अभी उन्होंने कहा 50,000 रुपए आप रजिस्ट्रेशन हर जर्नल देगा। भाई ये क्या चक्कर है भाई, इतने गरीब हो गए हो, 50,000 रुपए ऑलरेडी जब हम पैसे ले ही नहीं रहे हम कहाँ से दें। तो इसलिए यहाँ से हमें चाहिए कि एक तो इम्पैक्ट फैक्टर ऑब्सोलीट हो रहा है, डाइवर्सिटी फैक्टर आ रहा है जिसमें, और एप्रोप्रिएट ग्रांट लिखने के वर्कशॉप्स हों तो बहुत कुछ आसानी से हो सकता है। बहुत शुक्रिया। I have always promoted the concept of self-monitoring, self-accountability. I introduced the chairman of the General Medical Council UK in 1987, and he said we have come to the conclusion that medical profession cannot be monitored by the medical profession. So we went for the non-medical people. We have 30% members in the General Medical Council, non-doctors, and not politicians, but trust say education professional. पाकिस्तान का मसला ये है, कम विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे माफिया ग्रुप्स हैं और एक उन्हें मेडिकल माफिया ग्रुप भी है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग। I hate attending a conference in 5-star hotel, लेकिन believe you me, we spend billions of rupees every year on lunches and dinners। कभी जाके किसी कॉन्फ्रेंस में आप देखें क्या हाल होता है। Not only that, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना पे पैसा बनाने का एक धंधा बन गया। एक कॉन्फ्रेंस में मैं कहता हूँ, नाम नहीं लेता मैं, एक डिनर पे 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ।
और उसमें क्या है 60 लाख रुपए राहत फ़तेह अली खान को दिया गया खाना खाने और 40 लाख रुपए खाने पे। दूसरे दिन का डिनर था, उस पर 80 लाख रुपए लगे, 40 लाख पे हदीका कैनी को दे दिए गए और 40 लाख खाना खा लिया। अगर राहत अली खान को सुनने का शौक है तो भाई अपनी जेब से पैदा करो। ये फार्मा इंडस्ट्री से लेके फिर आप ये फार्मा इंडस्ट्री पेशेंट को पास ऑन कर सकते हैं, वो अपनी वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन हमारे रेगुलेटरी बॉडी भी सोई हुई है, गवर्नमेंट भी सोई हुई है। आई विश कभी इनको आँख खुल जाए, इनको पता चले, इसकी मॉनिटरिंग कर लें। तो ये इतना पैसा है जो ज़ाया होता है, ये सारा अगर रिसर्च पे आप लगा दें, स्कॉलरशिप दें, पीजीज को ट्रेन करें, वर्कशॉप करें सब में, तो बहुत कुछ हो सकता है। फंडिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम, फंडिंग बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच मिस्टर शाकिर अली साहब। ये जो है हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हर लेवल के लिए अगर कोई फंडिंग मैकेनिज्म हो, जैसे जूनियर फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी, स्टूडेंट्स, मास्टर्स लेवल स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी स्टूडेंट्स, और कॉम्पिटिटिव बेसिस पे उनकी भी जो है ना कोई असाइन हो, बहुत स्मॉल अमाउंट ही हो, वो उसी में कर लेंगे। हमारे स्टूडेंट्स जब बजट बनाते हैं तो आई थिंक इंशाल्लाह दिस विल गो थ्रू। I would like to come to Pro Vice Chancellor Professor Nigat Shah. Dr. Nigat करवाई है और तब्दीलियाँ इतनी आ रही हैं पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी में, एडवांसमेंट में, तो क्या यहाँ पे ज़रूरत है कि हम अपने करिकुलम को मैप करें अकॉर्डिंग टू व्हाट आर द न्यू चेंजेस दैट आर कमिंग। जैसे कि बिल्कुल अर्लियर डिस्कशन में था कि हम वही 60s और 70s की तरह की रिसर्च कर रहे हैं, मटेरियल्स एंड मेथड्स लिख रहे हैं। सो नाउ अब तो ऑनलाइन रिसर्च और बहुत सी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ अगर आप बताएं कि हाउ यू आर एन एजुकेशनिस्ट कि करिकुलम और रिसर्च को कैसे लिंक कर सकते हैं। Thank you very much, Dr. Rehana. I think you have बहुत अच्छा कंडक्ट कर रही हो, my congratulations. And you have so much richness here. अगर हमने चाइना में देखा तरक्की हो रही है किन चीज़ों पे, वो हमारे सेटअप में किस लिहाज से काम आएंगे। अभी जो नई चीज़ें हैं, जैसे मैं अपनी ओपीडी में भी देखती हूँ कि 600 मरीज होते हैं, हम उनको कभी सही से इतना देख ही नहीं पा रहे होते ना। हमारे पास चल रहा होता है आओ बीबी जाओ बीबी सिस्टम, तो ये तो नहीं हो सकता, उसमें मिस हो जाती हैं हाई रिस्क पेशेंट, फिर वो ब्लीड करती भी आती हैं, फिट्स में आती हैं, मदर मैटरनल मोर्टालिटी बढ़ती है। तो अगर हमारे पास वो सिस्टम हो जो उनको पूरा क्या कहना चाहिए असेसमेंट करके फिर हाई रिस्क को बड़े डॉक्टर के पास, लो रिस्क को छोटे डॉक्टर के पास, इस तरह तक वो हो, आई बिलीव कि हमारी ये रिचनेस है। ये जो स्टूडेंट्स आते हैं चाहे समोसा खा के चले जाते हैं, ये बच्चे अगर थोड़ा सा आए, मैं उन्हें कहती हूँ कम इन आफ्टरनून इवनिंग, इधर आप लेक्चर हॉल में बैठे, वहाँ आए, मरीज के पास बैठे। हॉस्पिटल इज अ रिच रिसोर्स फॉर पेशेंट्स। आपके पास मरीज जितनी अच्छी चीज कोई भी नहीं है जो आपको इतना सिखाएगी। इट्स हेवियर देन द बुक, इट्स हेवियर देन द बुक। सो अगर आपने ये आज एक चीज अपनी बांध के यहाँ से दुपट्टे में ले जाते हैं, मेरी अम्मा कहती थी कोई चीज याद करनी है तो दुपट्टे में नोट लगा दो, तो वो नोट लगा के आप जाते हैं, ये नहीं भूले मरीज आपको हर चीज से बचाएगा। यहाँ पे आपके किसी ने उस दिन बताया मुझे, ग्रेड्स नहीं पूछेगा, जीपीए नहीं पूछेगा। आई वाज नेवर अ पोजीशन होल्डर, was never a position holder, but I still made it because I am in love with people. So I am passionate about people. मुझे मैडम मिनिस्टर साहब आके कहती है ये तुमने कैसे लीडर्स बनाए, ये सब मेरे लीडर्स हैं जो आगे बैठे हुए हैं। So they will carry on the legacy. So legacy should not stop. On that note मैं चाहूँगी कि एक हमारा रोबोटिक का, क्योंकि we are talking about AI, डॉक्टर शफकत उसमें, डॉक्टर इरम उसमें, सारे हीरोज एंड इट्स अ ट्रिब्यूट टू डॉक्टर शाहिद रसूल। डॉक्टर शाहिद रसूल ये जेपीएमसी में लेके आए और उन्होंने शुरू किया ये रोबोट, तो मैं चाह रही हूँ कि उनके लिए हम ट्रिब्यूट भी पे करें और ये छोटा वीडियो देखें। इसको चला बेटा म्यूजिक के साथ सारे एंजॉय करें।
इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। कितनी ज़बरदस्त जो है एक हमें कॉन्सेप्ट दिया प्रोफेसर निगत शाह ने, ख्याल रखना। अब ख्याल वो अपने मरीज़ों का ख्याल रख रही हैं, वो अपनी फैकल्टी का ख्याल रख रही हैं, वो नई चीज़ों का, इजादात का ख्याल करके उनका केयर कर रही हैं। तो जो हम बाकी डिसिप्लिन्स हैं, जैसे हम पब्लिक हेल्थ हैं, हम दूसरी जो डिसिप्लिन्स हैं, इस वक्त 10 इंस्टीट्यूट्स जिनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, हम कैसे ख्याल रख सकते हैं? अगर हमारे पास आजकल नया दौर है डेटा साइंस का, अगर डेटा मौजूद है पिछले 10 साल का कि हमने डेंगू फीवर कैसे ट्रीट किया, हमने डेंगू हेमरेजिक फीवर को कैसे मैनेज किया, तो उसका प्रोटोकॉल हमारे पास खुद आ जाएगा। हमारे एक्सपर्ट्स ने ये काम किया हुआ है। तो इस तरह हम दूसरी बीमारियों में भी वी कैन सपोर्ट आवर क्लिनिशियंस, वी कैन सपोर्ट अदर डिसिप्लिन्स, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट्स सारी दुनिया में अब इस तरह की रिसर्च हो रही है। तो हमें अब उसके ऊपर भी हमें जाना है कि वी नीड टू कि वो क्लासेस लेता हूँ, so it becomes far away from me and the opportunities are very less. The second course is from AKUH and then DAO. कोई और रिसर्च का पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं छोटे मोटे, उनकी वैलिडिटी का ही नहीं पता चलता कि वो कितने वैलिड हैं, वो कितने अच्छे हैं। तो इस तरह की कोई बॉडीज हो, CPSP हो, HEC हो, PMDC हो, जो इस तरह के कोर्सेज को इंट्रोड्यूस ना सिर्फ करे बल्कि उसको मैंडेट करे, मस्ट करे, ताकि हमारे लिए ये रिसर्च आ सके। सर मैं सॉरी आप देखा, मैं से शौकत आपको ये बात कहती हूँ कि JSMU कराएगा, आप लीड करेंगे उसको, क्योंकि आप करके आ रहे हैं ना, हमें लोग चाहिए जो करके आए। और JSMU तो लगा हुआ है कि हम अपने MS प्रोग्राम स्टार्ट कराएं, अपने MD प्रोग्राम स्टार्ट कराएं। सो आपने सवाल, अब आपके गले में ये हार पाएगा सर। आपको CPSP की तरफ से सर जवाब। थैंक यू डॉक्टर शफकत, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अच्छा, एक चीज़ के लिए तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि एटलीस्ट रिसर्च को लेकर CPSP ने इनिशिएट किया हुआ है और अपने रेजिडेंट्स के लिए हम 4 डेज़ की वर्कशॉप और सुपरवाइजर्स के लिए भी कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमारा कैरिकुलम जो है वो रिवैम्प भी हो रहा है, जिसमें हम AI टूल्स को देख रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि मिनिस्टर साहब की मौजूदगी है, पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इनका, जाहिर सी बात है इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के आना, और रिसर्च जैसे जिसको सो कॉल्ड ड्राई सब्जेक्ट, इसको हमने इंट्रोड्यूस कैसे कराया। हमेशा से यही बात होती है कि बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है और थियोरेटिकल बात है, तो कोशिश यही हो रही है हमारी कि हम इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ लेकर जाएँ। अब क्योंकि हम ड्यूरेशन, जाहिर सी बात है कुछ लॉजिस्टिक हमारी, आपको पता है CPSP के प्लेटफॉर्म से कि एग्जामिनेशंस को भी देखना है। हमारे जो MHP प्रोग्राम और SCSM प्रोग्राम है उसमें एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको अब जो नेक्स्ट कैरिकुलम है उसमें इंट्रोड्यूस कर भी रहे हैं, और कोशिश हो रही है कि उसमें जो है इसके नंबर ऑफ लेक्चर्स को जो है बढ़ाया जाए। लेकिन रेजिडेंट्स के लिए क्योंकि क्लिनिकल रोटेशंस भी हैं और बहुत सारे रेजिडेंट्स का एक सवाल भी आता है कि जी इट्स अ क्लिनिकल प्रोग्राम, तो हमें रिसर्चर क्यों बनाया जा रहा है। हालांकि आज के वक्त की ज़रूरत है कि क्लिनिशियन को अपनी डाटा को, खासतौर पर जो पेशेंट्स का है उसी को गैदर करना है, उसी से अपनी प्रॉब्लम को, जैसे शौकत साहब ने शुरू में कहा था कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो सर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्टर साहब से कि अगर शॉर्ट कोर्सेज जैसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे हो रहे हैं, और वो आजकल जैसे हम AI के लिए करवा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो अगर हमारे जो डॉक्टर्स कम्युनिटी हैं उनके लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऑनलाइन एटलीस्ट कोर्सेज शुरू हो सकें 3 मंथ्स के या 6 मंथ्स के, तो हम इसके लिए बहुत इनके शुक्रगुजार भी होंगे। और मैं समझता हूँ कि उससे हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और ख़ासतौर पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। और दूसरी चीज़ ये थी, मैं आज रिक्वेस्ट करना चाह रहा था सर से कि रिसर्चर्स को जिस तरीके से एक रिकग्नाइजेशन मिलनी चाहिए और एक इंसेंटिव्स हैं, अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से हमारे पास नहीं है। और रिसर्चर को अगर हम उसी तरीके से कुछ इंसेंटिव दे सकें, कुछ अप्रिशिएट कर सकें। मैं शौकत जावेद साहब का नाम लूँगा, एक पेशावर में कॉन्फ्रेंस में वहाँ मौजूद थे, सर ने यहाँ तक ऑफर दी कि इनोवेटिव टॉपिक लेकर आएँ, इनोवेटिव रिसर्च लेकर आएँ, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा उसके, लेकिन आइडिया जो है वो इनोवेटिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और मैं अपने जर्नल में ऑफर कर रहा हूँ कि जिसको पब्लिश करूँगा विदाउट सिंगल पैनी। तो ये कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। प्लीज नोट। थैंक यू सो मच प्रोफेसर आसिफ मेमन, अगर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शौकत अली साहब, प्रोफेसर नज़ीर साहब, प्रोफेसर इकबाल अफरीदी साहब, आज सच पूछें जानना है तो वो जब तक जुस्तजू ना हो, जब तक चाहत ना हो, जब तक डेडिकेशन ना हो, जब तक आप में वो ना हो, जज्बा ना हो, तो वो मुझे यहाँ जज्बा देखने में आया, बल्कि भरपूर जज्बा देखने में आया। चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स थे, चाहे वो हमारे तालिब इल्म थे, तो बहुत खुशी की बात है कि हम
میں کافی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں، جانا پڑتا ہے، تو ریسرچ کے نام پہ سیمینار بھی ہوتے ہیں، ورکشاپ بھی ہوتے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہاں کچھ ایسی ایونٹس کی یہاں نشاندہی بھی کی. تو ایک تو پہلے ہی سچ پوچھیں کہ ہمارے بہت سارے جہاں حکومتی شعبات ہوتے ہیں تو اس میں ریسرچ ایلیمنٹ کم ہی ہوتا ہے تھوڑا، لیکن ہوتا بھی ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہر جگہ ریسرچ کے ہم پیسے رکھتے ہیں. اور جو بھی نیا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ کسی بھی خالی ہیلتھ سیکٹر سے تعلق نہ رکھتا ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہو، ایگریکلچر سے تعلق رکھتا ہو، یا کوئی بھی حکومتی محکمہ ہو، ڈپارٹمنٹ ہو، تو اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں، سارا ہوتا ہے. لیکن جو زیادہ تر یہ انفارچونیٹ ہے، ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ مطلب اگر تصور یہ ہو، اگر سوچ یہ ہو، اگر خیال یہ ہو کہ بھئی یہ پیسے خرچ کرنے ہیں، کہ بھئی بس پیسے ریسرچ کے لیے ہیں، تو ریسرچ کا سیمینار بھی اس لیے کرنا ہے کہ پیسے خرچ کرنے ہیں، یا ورکشاپ بھی اس لیے کرنا ہے کہ پیسے خرچ کرنے ہیں، تو پھر وہ چیزیں آگے نہیں بڑھتی، اس کا ہمیں رزلٹ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ایکسپرٹس ہوں، چاہے حکومت ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، یا جو ڈپارٹمنٹس کے ہمارے ہیڈس ہوتے ہیں، ان کی جو ایک ڈیزائر ہوتی ہے، جو تقاضا ہے موجودہ وقت کی ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ پھر ہمیں نہیں ملتے کہ ہم پیسے خرچ کریں اس لیے کہ بھئی ہمیں ریسرچ کرنی ہے. تو وہ مجھے یہاں خوشی ہوئی کہ واقعی یہاں جو آج میں نے یہ سمپوزیم اس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں یا جو بھی سب ہیں، یہ انتہائی خوشی کی بات ہے. اور میں ڈاکٹر نگر شاہ صاحبہ کو اور JSMU کی پوری فیکلٹی ممبرس کو اور پوری اس ٹیم کو جنہوں نے یہ آرگنائز کی ہے ریسرچ سمپوزیم پورا، تو ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے، مجھ سے زیادہ یہاں بڑے اذہان بیٹھے ہیں، میرا تو اس معاملے میں کوئی وہ نہیں ہے اتنی، لیکن جہاں تک بات ہے کہ سب سے پہلے جو ہو، سب سے زیادہ دنیا میں سب سے پیسہ زیادہ بھی خرچ جو ہو رہا ہے وہ ریسرچ پہ ہو رہا ہے، اور ہیلتھ سیکٹر پہ خاص طور پر بیماریاں چاہے وہ قدرتی جو یہ آ جاتی ہیں، جیسے ہمارے پاس ابھی جیسے یہاں ذکر بھی کیا گیا تو کووڈ آیا، کووڈ-19 یا اس قسم کی جو وبائیں آتی ہیں، وہ یا جو دوسری ابھی تک کئی ایسی بیماریاں ہمارے پاس ہیں جو لا علاج ہیں. اگر وہ لاحق ہو جائے کسی بھی بندے کو تو وہ پھر سمجھا جاتا ہے کہ جی بس اس کی زندگی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا. تو بہت ساری ہیلتھ ایشوز، اور پر خاص طرح ہم جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، اس میں تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں دنیا پتہ نہیں کئی معاملات پہ وہ اپنا وہ اوور کم کر چکی ہے اور اپنے حل کر چکی ہے. اس میں عام طور پر جو دوسرے شعراء کے جو شاعری ہوتی ہے اس کو ہم شاعر کہتے ہیں، لیکن شاہ لطیف بھٹائی کے ہم شاعروں کو جو وہ بیت کہتے ہیں. تو یہاں بیت ڈاکٹر صاحب نے پڑھا تو اس میں ایک یہ بھی بیت ہے کہ سگن سدن سورجی تک گھائل کیے گھاری، یعنی جو بندہ تندرست ہوتا ہے، جو صحتیاب ہوتا ہے، جو ٹھیک ہوتا ہے، اس کو کوئی علم نہیں ہوتا، اس کا کوئی ادراک نہیں ہوتا، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، اس کی کوئی محسوسات نہیں ہوتی کہ جو بندہ گھائل یعنی زخمی، یعنی بیمار، یعنی درد میں مبتلا، تکلیف میں مبتلا، اذیت میں مبتلا ہو، تو اس کو وہ ادراک اور احساس اور محسوسات نہیں ہو سکتی جتنا وہ بندہ خود کر رہا ہوگا. وہ خود جو تکلیف میں ہوگا، اس کی جو محسوسات ہوں گی، جو احساس ہوگا، وہ جو اس درد سے گزر رہا ہوگا، تو وہ آپ تمام جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ یہاں جو ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں، ان میں بھی کئی بالکل میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فیکلٹی ممبرس ہیں، اساتذہ ہیں، اور پڑھانے والے اور سکھانے والے ہیں، اور ہمارے طالب علم بیٹھے ہیں یا طلباء طالبات بیٹھے ہیں. تو وہ سب ظاہر ہے اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جو صحت سے ہے. اور شاید ہم پاکستان کا اس وقت بھی سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم آپ سب، اور خاص طور پر پھر گورنمنٹ سیکٹرز کی جو ہاسپٹل ہوتی ہیں ان پہ تو بہت بڑا ایک ٹرمیڈس قسم کا اتنا ہیوج پریشر ہوتا ہے پیشنٹس کا، مریضوں کا،
اور پھر ایک محدود وسائل ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے بھی, جیسے یونیورسٹیز کے بھی. لیکن میں جیسے یونیورسٹی میں ابھی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, تو مجھے خوشی ہے, میں پہلے بھی کچھ ٹائم آیا کہ یہاں جو ان کی جو پیسے, جیسے میڈم نے کہا کہ پیسوں کی کمی نہیں ہے, اور حکومت بھی کوشش کرتی ہے, اور اس یونیورسٹی کو بھی 1 ارب روپے سے زائد سالانہ دے رہی ہے. اس وقت بھی ہم سندھ کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں, ہمارے جو درسگاہیں ہیں, جو ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں, یقیناً وہ اس سے زیادہ کے مستحق ہیں, ہمیں زیادہ دینا چاہیے. لیکن محدود وسائل کے باوجود بھی میں آپ کو اتنا ضرور گوشگزار کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت اس وقت جتنی یونیورسٹیز اور جو ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں بڑے ہائر ایجوکیشن کے, ان کو جتنی گرانٹس ایڈ دے رہی ہے, وہ نہ تو وفاقی حکومت دے رہی ہے, نہ کوئی پاکستان کا کوئی اور پراؤنس. تو یہ ترجیح ہے, ہماری پریورٹی ہے. اور چلیں ایس لوک ہیئر. عام غریب لوگ آتے ہیں. تھینک یو, تھینک یو. یس, اوکے. بہت زبردست. ویڈنگ پکچر لی ہے آپ نے. تو دوستو, یہ تھا جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں ہونے والا AI ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سمپوزیم, جہاں ریسرچ, انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کا بہترین کمبینیشن دیکھنے کو ملا. اس ایونٹ نے اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز دونوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے فیوچر اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے انسپائر کیا. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.